everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. In a previous class, we have discussed about the image formation by a concave mirror. Today we will discuss image formation by a convex mirror. So let us start with the convex mirror. As you know that the convex mirror is also called a diverging mirror. Why? क्योंकि ये जो लाइट रेज जब इस मिरर पर पड़ता है तो वो उसको डाइवर्स कर देता है, बिखेर देता है. दैट्स वाई convex mirror is also called as a diverging mirror. So let us discuss how the image is formed in this mirror. So as you know that ये diverging mirror है भी कहलाता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं फिनोमिना ऑफ डाइवर्जिंग. एंड यू नो दैट इन कन्वेक्स मिरर ओनली वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड. सो the first condition, if you take to show that it is a diverging mirror, let us take the object at infinity. If we put the object at infinity, then what will happen? So how will you draw the convex mirror? For that you will draw a mirror like this, and as you know that it is painted inside this way. Okay, so this is your principal axis as we have discussed, which you will increase like this. Now as I told you, for this will be the imaginary focus and center of curvature. Why? Because the image is formed behind the mirror. So when a parallel line coming from the infinity और वो जब रिफ्लेक्ट होता है कन्वेक्स मिरर से, so what will happen? It diverges. Diverge means it diverges this side. और when we will पीछे उसको इमेजिनरी करेंगे तो F पर मिलेगा. सेम हियर it diverges, and when you take it backward you will find that both the waves are met at focal length. So it diverges. So you can see that imaginary image is formed. The image which is formed is actually virtual and it is diminished over here. So this way you can show that how the convex mirror diverges the light. फाइन. सो आपका इमेज कहाँ बना? इमेज बना एट एफ. और कैसा है? वर्चुअल है. वर्चुअल होगा तो क्या होगा? इरेक्ट होगा और डेफिनेटली डिमिनिश्ड वेरी पॉइंट साइज का है. क्लियर? नाउ लेट अस गो. देयर इज, यू कैन टेक द अनदर कंडीशन ऑफ कनकेव मिरर. और सिर्फ एक यही कंडीशन, कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को रखोगे कनकेव मिरर में, आपका इमेज एक ही जगह वही वर्चुअल और इरेक्ट बनता है. सो एक रे डायग्राम से हम समझेंगे. पहले बनाएंगे कन्वेक्स मिरर, देन प्रिंसिपल एक्सिस. फाइन. नाउ वेयर यू केप्ट द ऑब्जेक्ट, you can kept object anywhere. Suppose you kept the object over here. As you know that F, this is C. Now parallel line passes and when it reflect to the convex mirror क्या होता है? वो डाइवर्ज हो जाता है. डाइवर्जन के बाद ये फोकस से पीछे से लेकर जाओगे तो ये फोकस से पास होगा. ठीक है. दूसरा आपका क्या है? इस इमेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जब पास होता है, आपको पता है लाइट, वो टकरा कर क्या होता है? वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौट जाता है. तो आपको देखा ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर मिला, एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको यहाँ पे मिला. और दिस यू कैन ड्रॉ द इमेज. सो यू कैन सी दैट द इमेज विच यू हैव फाउंड, इट इज़ बिटवीन P एंड F. P और F के बीच में होता है. और ये आपका मिरर है. और कैसा है? इट इज़ बिटवीन. आपका इमेज कहाँ फॉर्म हुआ?
between pole and focus, and second pole and focus, and कैसा है, it is smaller than the object, and what is the nature, it is virtual and erect. Fine. So wherever you keep the object, this is the only ray diagram of the convex mirror. I hope you have understood it. Okay, now we will discuss about sign conversion of reflection of in a spherical mirror. What is this sign conversion? This can be used in when you are solving the mirror formula. For that, let us discuss first what is the mirror formula. So, mirror formula, one upon f is equals to 1 upon v plus 1 upon u. What is f, v, u over here? We will discuss this with the ray diagram. F is the focal length, v is your distance from the pole to the image, and u is the distance from pole to the object. मतलब पोल से लेकर जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है उस डिस्टेंस को हम u बोलेंगे, एंड पोल से लेकर जहाँ पर आपका इमेज बन रहा है उस डिस्टेंस को हम v बोलेंगे. And what is r over here? And r is known as a radius of curvature, as you know. So इन सब ये सब एक पर्टिकुलर साइन के अंदर आते हैं, वो साइन कन्वर्जन हम पढ़ेंगे. सो व्हाट इज दिस साइन कन्वर्जन? साइन कन्वर्जन में एक्चुअली ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ प्लेस्ड है उसका साइन के साथ हम डिस्टेंस को बताते हैं. आपने जब भी अगर हम कनकेव मिरर की बात करें, कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट, इवन कन्वेक्स मिरर में भी ऑब्जेक्ट जो है हमेशा इधर इस साइड रखा. अगर हम ये कार्टेशियन प्लेन की बात करें, आप सबको कार्टेशियन प्लेन पता होगा. कार्टेशियन प्लेन आपका ड्रॉ होता है ग्राफ पेपर में, और ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है. तो कार्टेशियन प्लेन में इधर एक्स एक्सिस हमेशा पॉजिटिव होता है और इधर वाई एक्स एक्सिस आपके हमेशा निगेटिव होता है. और आपका ऑब्जेक्ट अगर यहीं हमेशा मिरर के अगर सामने है तो लेफ्ट साइड पर कार्टेशियन प्लेन के शो हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ ऑब्जेक्ट आपका नेगेटिव हुआ. तो ऑब्जेक्ट को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है. तो u आपका नेगेटिव होगा. v अगर इसका इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है समवेयर, तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक v कहलाता है. v भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट पे यहाँ पर आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट पे आपका एक्स एक्सिस आपका नेगेटिव होता है, तो v की वैल्यू भी यहाँ नेगेटिव होगी. सो कनकेव मिरर के लिए आप देख रहे हो u भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, और फोकल लेंथ की अगर बात करें तो f भी आपका किधर है, वो इस साइड है, आपके लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नेगेटिव. बट इन केस ऑफ कनकेव कन्वेक्स मिरर ये u हमेशा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जा रहा है, u आपका नेगेटिव ही होगा. लेकिन सारे इमेज वर्चुअल बनेंगे तो ये आपके वर्चुअल इमेज में v ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है. सो क्लास साइन कन्वर्जन ऑफ मिरर से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि कनकेव मिरर में हमेशा आपका u नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव. वाई? क्योंकि वो मिरर जो है, अगर हम साइन कन्वेंशन में देखें तो मिरर हमेशा जो है इस साइड होता है, और इस साइड जो है एक्स एक्सिस आपका जो है नेगेटिव होता है. तो u ऑब्जेक्ट हमेशा हम यहाँ प्लेस कर रहे हैं, इसलिए u नेगेटिव होता है. v आपका जब नेगेटिव होगा जब वो रियल होगा. v मीन्स इमेज आपका पॉजिटिव होगा जब वो वर्चुअल होगा. और कनकेव मिरर का r हम भी ऑलवेज नेगेटिव होता है.
ठीक है। तो जब भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और कनकेव मिरर में क्या होता है, कनकेव मिरर में यू ऑलवेज निगेटिव होता है, में भी कन्वेक्स मिरर में भी यू ऑलवेज निगेटिव होता है, क्योंकि कन्वेक्स में भी ऑब्जेक्ट आपके लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा जाता है विच इज़ अ निगेटिव। एंड वी कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, इसलिए वी भी निगेटिव है, और कनकेव मिरर का जो आर है वो पॉजिटिव होता है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस साइन कन्वेंशन इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सो लेट अस डिस्कस some numerical problem related to mirror. So student, let us discuss some numerical problem related to mirror. You can see over here the question is that a convex mirror used for a rear view on an automobile has a radius of curvature 3.0. Radius of curvature means r. So आप given लिखोगे radius of curvature 3 मीटर। सी क्लास, यहाँ पे साइन कन्वेक्शन का कितना यूज़ है आप देख सकते हो, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। क्यों प्लस लिखा हुआ है, हमने डिस्कस किया है अभी कि कन्वर्स मिरर का आर जो है पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पे आर जब लिखेंगे सिर्फ 3 नहीं लिखेंगे, उनके साइन के साथ सारी वैल्यू लिखेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, +3 मीटर। व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट इज दैट इफ द बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, तो ये बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम यू बोलते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं यू इज इक्वल्स टू 5 मीटर के साथ साथ माइनस साइन यूज़ किया गया है। क्यों माइनस साइन यूज़ किया गया है, हमने डिस्कस किया है अभी। यू जो है हमेशा ही नेगेटिव होता है, किसके लिए, कन्वेक्स और कनकेव दोनों के लिए। तो यू को हमने मेंशन करेंगे। दैट्स वाई द क्वेश्चन अराइज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन यू एज -5। नेक्स्ट इज दैट फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर, साइज ऑफ द इमेज। आपको तीनों चीज़ निकालनी है। किस चीज़ की, ये जो बस की इमेज फॉर्म होगी उसकी पोजीशन कहाँ होगी, उसका नेचर क्या होगा और उसकी साइज क्या होगी। So you can see that we have to find here, we have to find v, which is the distance from image to the pole, and height of the image. H dash represent the height of the image, ठीक है, and r and u is already given. So first of all let us find the focal length. So to find the focal length, what we will do, as you know that f is equals to r by 2, so f will be 1.5 meter. And now when we get the f, because इस f का यूज़ हमें मिरर फॉर्मूला में करेंगे तभी तो हमें v की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो f निकालने के बाद अब हम यूज़ करेंगे मिरर फार्मूला। सो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1 by v plus 1 by u is equals to 1 by f. सो वी पुट द वैल्यू ऑफ 1 बाई, तो 1 बाई वी किसके बराबर, क्योंकि v निकालना है तो 1 बाई यू इधर चला जाएगा और माइनस हो जाएगा। अब हम सबको उनके साइन के साथ रखेंगे। 1 बाई वी इज इक्वल्स टू 1/f। f की वैल्यू यहाँ पर +1.5 है, +1.5 एंड 1 बाई यू, माइनस साइन है यहाँ पर, साथ में हम जब u की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस के साथ ही पुट करेंगे। तो 1/1.5 माइनस 1/-5, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। सो इट विल बिकम दिस 1/1.5 प्लस 1/5। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन का, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आपका हो जाएगा 7.5, विच इज ऑल मेंशन ओवर देयर। यू विल गेट आफ्टर सॉल्विंग दिस, यू विल गेट 5.5 प्लस 1.5/7.5। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द आंसर लाइक दैट। वी की वैल्यू डिवाइड करने के बाद पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव है। अब बहुत ध्यान देने वाली बात है, वी की वैल्यू यहाँ पर आया है +1.15 मीटर।
अब ये जो आपका प्लस साइन बता रहा है कि आपका कैसा प्लस, मतलब ये किस टाइप का मिरर है, इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज बना है जो कि बैक ऑफ द मिरर है। अगर ये नेगेटिव साइन होता तो रियल इमेज होता, प्लस है इसलिए वर्चुअल इमेज है, इसलिए हम लिखेंगे द इमेज इज 1.5 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर एंड यू कैन बैक ऑफ द मिरर। इसका हमें हाइट भी बताना है। हाइट निकालने के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमने लर्न किया था। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला था m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u. So we will use this formula over here. We will put all the value, and what we have find the value 0.23 plus 0.23. m means प्लस 0 पॉइंट मैग्नीफिकेशन आपका आ गया प्लस 0.23. दैट मीन्स एंड लास्ट में इमेज कैसा बना, आपका प्लस साइन आया था इसलिए वर्चुअल बना, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है तो यू विल राइट इरेक्ट एंड इट इज़ 0.25. सो इट इज़ स्मॉलर इन साइज विद द फैक्टर 0.25. सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. If you look at to the second question, it is mentioned over here that an object of size 7 centimeter. देखो जब भी हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो साथ साथ उसका गिवन लिखते रहना चाहिए. यहाँ पर आपने अभी को जो क्वेश्चन पढ़ा इसमें द एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ साइज 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब यू है, और यू हमेशा निगेटिव साइज मेंशन है यहाँ पर. यू हमेशा आपका निगेटिव होता है, तो ये प्लेस 27 सेंटीमीटर जो प्लेस्ड है वो हम लिख देंगे -27 बिकॉज यू इज़ ऑलवेज निगेटिव. एफ, उसके बाद आपको व्हाट इज़ गिवन दैट कनकेव मिरर फोकल लेंथ ऑफ 18 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ वो किस चीज़ का फोकल लेंथ है, कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होता है क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपका निगेटिव होता है. तो एफ आपका हो गया नेगेटिव. एफ आपका निगेटिव है एंड देन व्हाट विल हैपन, देयर इज ऑल्सो द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन. साइज इज गिवन इफ यू मेंशन टेक द साइज एट h0 तो इट विल बी 7 सेंटीमीटर. तो ये आपका गिवन हो गया u, f एंड h. और क्या हमें निकालना है, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज. इमेज की साइज भी निकालना है, इसका मतलब आपका इमेज की साइज h डैश निकालनी है और आपको इसका नेचर भी निकालना है. सो फॉर दैट लेट अस अगेन मिरर फॉर्मूला लेते हैं. एंड व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला ओवर हियर, यू नो दैट 1/v इज इक्वल प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर u की -27, यहाँ f की वैल्यू पुट करेंगे साइन के साथ, और 1/v निकालने के लिए -27 वहाँ जाके +27 हो जाएगा, और व्हेन वी विल सॉल्व वी विल गेट 1/v इज इक्वल्स टू, हमें मिला 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/54. जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा v की वैल्यू, v इज इक्वल्स टू -54 सेंटीमीटर. एंड हाइट निकालने की हमेशा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और यहाँ पर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपको मेंशन है, यू नो दैट h डैश अपॉन h0 इज इक्वल्स टू -v/u. ये मैग्नीफिकेशन है मिरर के लिए. h यहाँ पे h1 है आपका इमेज की हाइट, h0 है ऑब्जेक्ट की हाइट, और ऑब्जेक्ट की हाइट आपको पता है तो h1 कितना हो जाएगा, h0 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सारी वैल्यू हम पुट करेंगे. मेक श्योर दैट जब भी हम u, v, h सब की वैल्यू पुट करते हैं साइन के साथ पुट करेंगे. तो यहाँ v की वैल्यू -54 आया तो -54 रखेंगे, एंड व्हेन वी विल सॉल्व वी विल गेट द आंसर -14 सेंटीमीटर. अब -14 सेंटीमीटर में जो आपका साइन है, माइनस साइन आपको ये बता रहा है कि आपका इमेज कैसा बन रहा है, आपका इमेज रियल बन रहा है. तो आपका इमेज रियल है, रियल ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, और इसका साइज़ देखो आप, ये इसकी साइज़ जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो इनलार्ज्ड है. सो नाउ दिस वे बाय यूजिंग द साइन यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल. आज के लिए सिर्फ इतना. नेक्स्ट क्लास में हम रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स और कनकेव लेंस डिस्कस करेंगे. टिल देन गुड बाय.